are strong, stand and under her blessing, our school is growing well day by day. Morning to all of you. जैसा कि जैनब ने बताया कि आज हम सब यहाँ सच अल्लाह का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस उत्सव का शुभारंभ करने के लिए मैं हमारे विद्यालय के रिस्पेक्टेड तस्मीन सर जी से निवेदन करूंगी कि वह स्टेज पर आए और मां मरियम के सामने भी प्रज्वलित कर माल्यार्पण करें। Lead us, Mother, gentle Mother, teach us children your loving ways. As you raise your daughter Mary, Holy Virgin, pure and true, give those gentle, loving lessons to be like her and like you, dear Saint Anna, loving Mother. We have gathered to sing your praise. Lead us, God Mother. could not be present everywhere, so He created Mother. Now children of class first are going to sing action poem dedicated to Mother. Children, please come on the stage. Good morning all of you. We are students of class first. We are going to recite a poem on Saint Anne. Long ago in days of old, a holy story we are told of when Fulani ruled the light, a jolly god that made her kind, with glittering hand and fine to play. She thought of in every place, to like a waiting, yet of player, she gave us we never care. Then came a Lord and sent her soul, a blessing making her life whole. A little daughter pure in mind, the Blessed Mary, Holy Child, strengthened hand and God the sweet. She guided many tiny feet. She taught them out and read and say, good and goodness every day. Preparing her to spring a bird with a devout and loving heart. And when the years had passed along, her faithful heart was grateful strong. But she was chosen by God's grace to look upon the Savior's face, the grandmother of Christ the King, whose praise the holy angels sing. Today you watch us from above, with all that same grandmother's love. You heal the sick and calm our fear, and wipe away all heavy tears. After drums and to glad and small, we listen slowly when we call. So guide our family any day, and keep us good secrets from the threat. Listen then, so sweet and kind, a safer guide, we could not find. Hold our hands and lead our life, and lead us safely through the night. Thank you. Thank you, friends, presenting a nice poem. Clap for them. We know that Saint Anne was grandmother of Yeshu. We all have grandparents. They are truly blessing in our lives. They provide unconditional love like our parents.
सही कहा ज़ैनब आपने। दादा दादी नाना नानी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। उन्हें जीवन के बहुत सारे अनुभव होते हैं जिससे वह बच्चों को उनका अच्छा बुरा बेहतर ढंग से समझाते हैं। उनकी कहानियाँ बचपन की सबसे अनमोल चीज होती है। इन कहानियों के माध्यम से वह हर बार कुछ नया सिखाते हैं। Now I would like to call our respected Dasna ma'am to say few words about grandparents. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे प्रिय सहकर्मी एवं प्यारे बच्चों, आज का दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उस पीढ़ी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिसने अपने अनुभव, त्याग और प्रेम से हमारे जीवन को संवारने का कार्य किया है। आज हम उन महान व्यक्तियों का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्हें हम प्रेम से दादा दादी और नाना नानी कहते हैं। कहा गया है कि बुजुर्ग किसी घर का बोझ नहीं बल्कि उस घर की सबसे बड़ी दौलत है। उनके सफेद बाल केवल उम्र का संकेत नहीं बल्कि संघर्ष, अनुभव और जीवन की अनगिनत सीखों का प्रतीक है। एक बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर होता है और उसके शिक्षक माता पिता के साथ दादा दादी और नाना नानी भी होते हैं। वे हमें बोलना और चलना सिखाते हैं, बल्कि वे नम्रता, खैर, ईमानदारी और मानवता का पाठ भी पढ़ाते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनकी गोद हमारी सबसे सुरक्षित जगह होती है। उनकी कहानियाँ हमारी कल्पनाओं को पंख देती है। उनकी दुआएं हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। तकनीक ने हमें दुनिया से जोड़ दिया है। हम मोबाइल पर घंटों समय बिताते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ पल बैठकर बातें करने का समय नहीं निकाल पाते, जबकि उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता हमारी उपस्थिति, हमारे सम्मान और स्नेह की होती है। बच्चों, हमें याद रखना है कि एक दिन हम भी उसी उम्र में पहुंचेंगे जहां आज हमारे दादा दादी और नाना नानी है। इसलिए आज जो सम्मान और प्रेम हम उन्हें देंगे वही आने वाली पीढ़ियां हमसे सीखेंगी। हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माता पिता हमारे लिए भगवान है। इसी भावना के साथ हमें अपने परिवार के सभी बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद किसी भी धन दौलत से अधिक मूल्यवान होता है। आज इस मंच से मैं सभी बच्चों से केवल एक छोटी सी अपील करना चाहती हूँ। रोज कम से कम 10 मिनट अपने दादा दादी या नाना नानी के पास बैठिए, उनकी बात सुनिए। यकीन मानिए, यह 10 मिनट उनके लिए पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन सकते हैं। आइए हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनके अनुभव से सीखेंगे और उन्हें कभी महसूस नहीं होने देंगे कि वे अकेले हैं। इस भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। विद्यालय के बॉय ग्रुप के बच्चे इस गीत के माध्यम से संत अन्ना और माता मरियम को श्रद्धा अर्पित करने जा रहे हैं। गीत के बोल है, कितनी दूर क्यों है माँ, जब गीत समान बताना राज क्यों है माँ,
सेंट सिक्स स्कूल फर्स्ट 1996 में हुआ। इस स्थापना के समय के लिए यह विद्यालय स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन और प्रेम की सेवा की भावना सिखाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। आज हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लास की सुविधाएं भी उपलब्ध है, जिससे पढ़ाई और इंटरेस्टिंग हो गई है। हमारा स्कूल संत अन्ना के नाम पर है। संत अन्ना और जोआकिन जो कि जीसस क्राइस्ट के नाना नानी यानी ग्रैंड पेरेंट्स थे। आज हमें अपने दादाजी और नाना नानी को इस अवसर पर भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वह प्रेम, धैर्य और परिवार के आदर्श मूल्य प्रतीक माने जाते हैं। हैप्पी ग्रैंड पेरेंट्स डे टू ऑल ऑफ यू, जिनका जीवन सेंट अन्ने की माता मदर मेरी था। हमें ईश्वर पर विश्वास रखने, दूसरों की सेवा करने, सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। आज हम सभी संकल्प लें कि हम अनुशासन का पालन करेंगे और संत अन्ना के आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हैप्पी टीचर। Oh,
से भी सुंदर है तुम, चांद से भी प्यारी है तुम, माँ मरिया तू माँ तुम्हारी माँ, ममता मई माँ तू माँ दुलारी माँ, तुमसे भी सुंदर है तुम, चांद से भी प्यारी है तुम, माँ मरिया तू माँ तुम्हारी माँ, ममता मई माँ तू माँ दुलारी माँ। मेरे जीवन में हम चलेंगे सदा तेरी डगर तेरे गया माँ मेरे जीवन में, हम चलेंगे सदा तेरे डगर में, फूल से भी सुंदर है तुम, चांद से भी प्यारी है तुम, माँ मरिया तू माँ तुम्हारी माँ, ममता मई माँ तू माँ दुलारी माँ। किसी फूल से हमें मिला दे, मीठी बोलियां तुमने सिखा दी। अपने सपूत से हमें मिला दे, मीठी बोलियां हमें सिखा दे, फूल से भी सुंदर है तुम, चांद से भी प्यारी है तुम, माँ मरिया तू माँ तुम्हारी माँ, ममता मई माँ तू माँ दुलारी माँ। क्या आपको पता है कि आज हमारे विद्यालय के फीस डे के साथ साथ एक और खास दिन है। आज के दिन हमारे देश में कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस दिन को विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी विषय पर अब हमारे रिस्पेक्टेड श्रोता मैम आप सबको कुछ बताने जा रही हैं। मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। दुश्मन ने छेड़ी थी जंग, दुश्मन ने छेड़ी थी जंग ऊंची पहाड़ियों पर, हमारे जवानों ने जीत लिख दी, हमारे जवानों ने जीत लिख दी इतिहास के पन्नों पर। रिस्पेक्टेड सर, डियर टीचर्स एंड माय डियर लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपके सामने देश के इतिहास के एक गौरवशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन को याद कराने और देश के वीर शहीदों को नमन करने के लिए उपस्थित हूँ। 26 जुलाई जिसे पूरा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है, उसके विषय में बताने जा रही हूँ। आज से ठीक 27 वर्ष पहले 26 जुलाई 1999 में हमारे वीर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाकर कारगिल के दुर्गम चोटियों पर तिरंगा लहराया था। यह युद्ध भारत ने चुना नहीं था, बल्कि यह हम पर थोपा गया था। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांति का हाथ बढ़ाया और पाकिस्तान गए थे, किंतु पाकिस्तानी सेना ने
धोखे से हमारी सेना की अनुपस्थिति का फायदा उठाया। कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। मई 1999 में जब इस घुसपैठ का भारतीय सेना को पता चला तो हमारी सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत करी। ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, ये हमारे देश की इज्जत, सम्मान और मान का सवाल था। सोचिए, दुश्मन पहाड़ियों की चोटियों पर बैठा था और हमारे जवान नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे। ऑक्सीजन की कमी, टेम्परेचर -10 डिग्री और ऊपर से गोलियां बरस रही थी, फिर भी हमारे सैनिक पीछे नहीं हटे। लगभग 60 दिनों तक ये युद्ध चला और इस भयंकर युद्ध में भारतीय सेना और वायु सेना ने अपने साहस और पराक्रम का तथा रणनीतिक कुशलता का परिचय दिया और एक एक करके दुश्मन के सभी सिपाहियों को भगा दिया। टाइगर हिल द्रास गवाह है कैसे हमारे जवानों ने इतिहास रचा था। टाइगर हिल गवाह है, द्रास गवाह है कैसे हमारे जवानों ने इतिहास रचा था। 527 दीप बुझे थे जंग में, तब जाकर कारगिल पर तिरंगा लहराया था। इस ऐतिहासिक जीत को हासिल करने में हमारे 527 वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। 1300 से अधिक सिपाही घायल हुए। हम कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, मेजर पदममणि आचार्य और कैप्टन अनुज नैयर को कभी भी भुला नहीं सकते। और उन जैसे ना जाने कितने सैकड़ों वीरों ने इस बलिदान दिया और हम उनकी श्रद्धांजलि उनको देते हैं। इन जैसे ना जाने कितने ही वीर जवानों ने हमारे देश की मान, शान और सम्मान के लिए कुर्बान कर दिया अपने जीवन को, ताकि हम और आप अपने परिवारों के साथ अपने घरों में सुरक्षित रह सके। 26 जुलाई 1999 को भारत ने ऐलान किया, कारगिल पर हमने विजय हासिल कर ली है। तब से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस केवल जीत का जश्न मनाने का दिन ही नहीं है, बल्कि यह दिन हमारे सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करने का भी है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आइए आज हम सब मिलकर कसम खाएं कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश के विकास में अपना योगदान देंगे। अंत में बस इतना ही कहूंगी, खून से सींची थी कारगिल की माटी, पर वतन का मस्तक झुकने नहीं दिया। प्राण दे दिए अपनी भारत माँ पर तिरंगे की शान झुकने नहीं दी। प्राण दे दिए अपनी भारत माँ पर तिरंगे की शान को झुकने नहीं दिया। 26 जुलाई का वो पावन दिन जब कारगिल पर हमने फतह पाई थी, शहीदों के पावन बलिदानों से देश में गौरव की दिवाली आई थी। शहीदों के पावन बलिदानों से देश में गौरव की दिवाली आई थी। नमन है कारगिल के उन शेरों को जो सो गए वतन की गोद में। अमर रहेगा उनका यह बलिदान सदा हमारी यादों में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय सेना अमर रहे, भारतीय सेना, भारतीय सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Thank you, children. So much, ma'am. So now moving forward with our program, I would like to call class 3rd A and 3rd B children to present a small sketch about Kargil War. So please children come up on the stage. अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद प्रतीक हम आज सुरक्षित है, तो सिर्फ हमारी सरहदों पर तैनात फौजी सिपाहियों की वजह से जो दिन रात धूप बरसात की चिंता किए बिना सरहद पर तैनात रहते हैं। हम चैन से सो पाए इसलिए वो सो गया। वो भारतीय फौजी ही है जो आज शहीद हो गया। उन्हीं सारे वीर फौजी सैनिकों
अरे मार्चू बेटा, कौन आया है? अरे भाई साहब, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बेटा। अरे हिमांशु बेटा, आप चलो, आप अंदर जाकर पढ़ाई कर लो। पर माँ, मेरे पास तो नई किताब ही नहीं है। पापा ने बोला था इस बार आऊंगा तो फिर नई किताबें, कापियाँ, जूते और बस्ता भी दिलाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, पापा को कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए वह छुट्टी में ना आ सके। तुम तब तक अपनी पुरानी किताबों से ही पढ़ाई कर लो। हाँ बेटा, आप जाकर पढ़ाई कर लो। अरे भाई साहब, आप लोग पानी पीजिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं भाभी जी, आप बैठिए, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं। अरे नहीं, अगर उन्हें पता चला मैंने उनके फौजी भाइयों को चाय तक नहीं पिलाई तो वह गुस्सा करेंगे। मुरली, मैं नहीं बोल पाऊंगा, तू बोल देना। बाबूजी, आपका बहादुर बेटा बहुत बहादुरी से लड़ा, वहाँ अकेले 10-10 पर भारी पड़ा। मट्टी का तिलक लगा एक शेर की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ा। अपने सीने से बारूद को गले लगाकर दुश्मनों की पूरी चौकी को उड़ा दिया उसने। अरे भाई साहब, आप बाबूजी से क्या बात कर रहे हैं? उन्हें तो सुनाई भी नहीं देता। जब वह छुट्टी पर आएंगे तो इनके लिए कान की मशीन लाएंगे। अरे भैया, दूसरे वाले फौजी भैया कहाँ गए? मैं अभी लेकर आता हूँ। चौकीदी, अब मैं नहीं कह पाऊंगा। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि शहीद हम नहीं, हमारा पूरा परिवार होता है। कैसे कहूँ बाबूजी से कि उनकी कानों की मशीन लाने वाला उनका सेठ अब कभी वापस नहीं आएगा, और कैसे कहूँ उस छोटे से बच्चे से कि उसके पापा लौट कर नहीं आएंगे। चल मुरली, वापस चलते हैं और कह देंगे उस अफसर से कि ये फौजी बड़ी सी बड़ी जंग लड़ सकता है, लेकिन एक परिवार को शहादत का संदेश देने की हिम्मत नहीं इस फौजी में। चल। बिल्कुल मेरे भाई। अरे भाई साहब, आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप लोग जो देने आए थे उसे दिए बिना ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैं अक्सर सोचा करता था कि एक फौजी को जंग में लड़ने का जुनून कहाँ से आता है, अपनों की सुरक्षा करने का हौसला कहाँ से आता है, पर आज जाकर पता
सदा की, यह बल फौजी को उसके परिवार से मिलता है। कारगिल की युद्ध में वह खुद वापस नहीं आए और या तिरंगा भिजवा दिया। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि या तो मैं तिरंगा रहूंगा या तिरंगा मुझे। अनगिनत शहादत से यह आजादी मिली है। अब हमारा फर्ज है कि उनकी शहादत बेकार ना जाए, इसलिए आजादी के लिए हम उनकी शहीदों को नमन करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। जय भारत। You men for presenting the wonderful performance. Please give a big round of applause. अब मैं आदरणीय सर से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। प्लीज सर। Morning, children, ma'am, and all your present. It is a pleasure being here today, and especially on this occasion of Grandparents' Day. Today I must thank the Lord because He has given a pleasant day to us. No doubt it's very hot, but at least we were able to see the program over here, whatever was put up, which was very nice. On the occasion of St. Anne's Day, I would like to wish all of you all a happy Peace Day. And this is a reminder that we have spent 30 years in the school under the guidance and protection of St. Anne's. St. Anne is the grandmother of Jesus Christ. And I implore that all of us were in her guidance and plus for the years to come also. So our teachers, all their preparations that took place was very nice, anchoring also, and all the programs of all the classes. Last but not least, even the Kargil program that they performed was very good. And the decoration that is up is really superb. It's very grand. A big hand to all the teachers, students, staff, whoever took part in making this day a success. Thank you, children. Thank you, ma'am. Thank you very much. Good morning, respected principal sir and my dear friends, teachers and children. आज हम लोगों ने यहाँ पे सेंट एन्स के लिए फीस मंगवाया। आप सभी से ये सभी प्रोग्राम बहुत सुंदर और अच्छे थे। हर टीचर्स ने बड़ी अच्छी तरह से मेहनत किया था और अच्छा काम करा। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या चीज बनाई थी आप बता सकते हैं? पीस डे। वो अपना उस दिन हम लोग की स्कूल की स्थापना हुई थी और ये सेंट एन्स का नाम था। हम सब इनको नमन करते हैं। उसके पश्चात सारे प्रोग्राम के बाद हम लोगों ने ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया, साथ में कारगिल के विषय में मनाया, जो कि हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और हम सब टीचर्स और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय। Dear Saint Anna, loving mother, we have gathered to sing your praise.
Lead us, Mother.